Guys, always you are asking 3 questions. Number 1, bro, where are you from? And number 2, what's your name? And number 3, bro, are you Hindu or Muslim? Seriously? Okay. Sorry. My name is Shetu Sarkar and I am from Bangladesh and I am a Hindu. So আমি অনেক প্রাউড ফিল করি যে আই এম এ হিন্দু। তো শেষ। অ্যান্ড গাইজ বেসিক্যালি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার উইথ এনি রিলিজন। একজন রিয়েল হিন্দু যে সে হচ্ছে সকল ধর্মকে রেসপেক্ট করে, সম্মান করে, কোনো ডিসক্রিমিনেশন করে না, ঠিক আছে। অ্যান্ড গাইজ বেসিক্যালি আই লাভ অল ইন্ডিয়ান পিপল, especially because I born in 1997 in Kolkata. আমার মামা বাড়ি, however lot of relatives or family member they are living in Kolkata city, I mean India. তো I want to visit there one day, ঠিক আছে। ইটস মাই ড্রিম বলতে পারো, ইউনো। আমি আসতে চাই, খুব তাড়াতাড়ি যাব। আর ওখানে গেলে অবশ্যই ব্লগ বানাবো, যেটা আমি আমার সেকেন্ড ব্লগ চ্যানেলে আমি আপলোড করব। তো যাও ফটাফট আমার চ্যানেলটা ফলো করে আসো। আর তোমাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। আর কে কোথাওতে বলতেছো অবশ্যই এটা কমেন্ট করে জানাও। সো লাভ ইউ। তো গাইজ নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম এন্ড নবুদ্ধাও। দিস ইজ সেতু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশান ভিডিও। তো গাইজ টুডে আই এম সুপার টুপার এক্সাইটেড, কারণ আফটার লং টাইম আমি ভিডিও স্টোরিজ বাই শুভম, যে ভাই রয়েছেন শুভম ভাই, তার ভিডিওতে রিয়াকশান দিয়ে যাচ্ছি অনেক কয়েক মাস, 4-5 মাস পরে। তো অল ক্রেডিট গোজ টু শুভম ভাই। থ্যাংক ইউ শুভম ভাই, আপনি আমাকে এই পারমিশন দিয়েছেন আপনার ভিডিওতে রিয়াকশান দেওয়ার জন্য। তার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। টেক লাভ ফ্রম বাংলাদেশ, ঠিক আছে। আর তোমাদেরও অনেক অনেক ভালোবাসা। আর কোথাওতে বলতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। তার আগে একটা রিকোয়েস্ট, ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। অলরেডি তোমরা জানতে চেয়েছো যে হাউ টু সেলিব্রেট দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজো, সরস্বতী পুজো ইন বাংলাদেশ। সো অল এভরিথিং আমি হচ্ছে ভিডিও বানাই, ব্লগ ভিডিও, আমার সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, সেটা আপলোড করি। তো যাও, চলে যাও। আর কোনো কথা হবে না, অনেক এক্সাইটেড। আর ভিডিওটা একটু লং, সো ডোন্ট স্কিপ স্যার, এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। তো চলো শুরু করি, লেটস গো। আর গাইজ টাইটেল তো বলা ভুলেই গেছিলাম। টাইটেল হচ্ছে ইন্ডিয়ান মিডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান মিডিয়া ফানি ফাইট একটা, ঠিক আছে। তো চলো 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 শুরু করি, লেটস গো। आप कभी पाकिस्तानियों से लॉजिक की उम्मीद मत करिएगा कि वो अपना आप उनसे पूछ लेंगे ना कैसे, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है। बस यही 3 इनके डायलॉग हैं। हम जिंदा कौम है, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, हम में जज्बा है। बस यही 3 इनके डायलॉग। आई लव दिस पर्सन, सीरियसली। सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज के एक और नए स्पेशल वीडियो में, जिसमें होंगे कुछ पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स। हमको सिर्फ चाहिए दे दे बाबा दे दे। कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसा मत करो मेरी जान। और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते। आप प्लीज वापस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। औकात मेरे। पाकिस्तान आपको फ्री स्कॉलरशिप देगा, आपको फ्री जॉब्स देगा पाकिस्तान। वुमेन বাট অল উমেন্স কে রেসপেক্ট করতে হবে। यही नहीं, ওমেনের মধ্যে কিন্তু নিজের মাও यहाँ पर পড়ে। सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी। वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे, हमने तो जीत ही जाना है जो मर्जी। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान को Guys, लेकर I can understand थोड़ा हिंदी, but I can't talk properly, so don't mind. Enjoy करो। और इंग्लैंड, ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। तो कुछ लोग उल्टा पाकिस्तान को ही धोएंगे। हमारी जो गवर्नमेंट के इस वक्त हालात हैं, मतलब हमारे जो वजीर आजम हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है, इंटरनेशनल भिखारी। तो पेश करते हैं आपके सामने पाकिस्तानी जनता, वहाँ के एंकर्स और वहाँ के मंत्रियों का भी रोना धोना। चलो। मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ, मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तान के एक जोकर नेता हैं शेख रशीद अहमद, जिनका हाल बेहाल है अभी। तुम्हारा रस का शेख रशीद खाने पीने के मामले पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सीरी पाई उनका मनपसंद नाश्ता है। ऐसे में बिरयानी देखकर तो उनसे रहा नहीं जाता। अरे बात करो भाई। बयानों को लेकर ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो मुझे मेरे माँ की दूध की कसम है, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा।
बाप साले रे। तू लेकिन इस बार कुछ बड़ा हुआ है इनके साथ। दरअसल इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बेचारा। जहाँ मर्जी हो 5 मुजरम होंगे। क्या होगा? नाक के गुशी पर से किधर नहीं। शेख साहब गिरफ्तार आपको किधर से किया है? मेरे घर से किया, पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस ने किया। इस्लामाबाद पुलिस ने किया और मेरे मुलाजमीन को मारा। ना 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 बेटा ना रोते नहीं। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। A few moments later. मुझे जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है। खत्म। बाय 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 टाटा बाय बाय गुड बाय गया। वैसे तो कई सारी हरकतें हैं इनकी, लेकिन बताया ये जा रहा है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ टिप्पणी करने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। क्यूट स्माइल। साथ ही साथ अपने पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी तब मार ली जब पुलिस अधिकारियों के साथ इन्होंने बदतमीजी दिखा दी। तो एक और केस दर्ज हो गया इन पर। यानी कि तुम ठुस हो गए हो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो गई है। एक हाथ से सिगार फूंकते हैं और कहते हैं कि कभी नशा नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब से मैं पैदा हुआ मैंने नशा नहीं किया। गजब टूबीबाज आदमी। ये वही है जो पाव आधा पाव का बम रखने की धमकी देते हैं भारत को। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। वही है जो बता रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर 22 पाकिस्तान बनेंगे। 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। आगे खाने की व्यवस्था करो, बैठे की सुनाइए तो ना बुलबुल बके। बहनों को सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। कहते मैं अपने कपड़े भेजूंगा, कपड़े ये मैं कपड़े भेज दूंगा अपने भूख और आटे के सस्ते के लिए। शेख साहब आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखें मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इसे न्यूज एंकर्स भी इनको बख्शते नहीं है, फुल मजे ले रहे हैं जब ये गिरफ्तार हुए थे। शेख साहब रो पड़े और इनका रोना गाना दिखाया जा रहा था। एडा केड़ा को सीक्रेट काम है, केड़ी को कौमी राज है ने जेडे तुसी दस रहे कि जी मेरे। अच्छा मुझे ऑफ ऑल द पीपल मैं जानता हूँ शेख साहब को कख नहीं पता ट्विटर के बारे में, कख नहीं पता इनको। शेख साहब मशहूर है इस बात के ऊपर कि वो बता देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने लगा है। अब ये अगले 15 दिन बड़े अहम हैं, 2 महीने बड़े अहम हैं, आप देखिएगा ये होने जा रहा है। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब को पहले पता था कि इमरान खान साहब ना जेल भरो तहरीक की कॉल देने लगे। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जाऊँगा और इसीलिए मेरे ख्याल में शेख साहब जो हैं वो सबसे पहले जेल चले गए। मुझे यूँ महसूस होता है कि शेख रशीद साहब की खवारी के दिन शुरू हो चुके हैं। कभी वो इधर आ रहे हैं, कभी वो उधर आ रहे हैं, कभी उसको उनके खिलाफ वहाँ पे केस हो रहा है, कभी उनके खिलाफ वहाँ यहाँ पे केस हो रहा है। उनको घुमाया जा रहा है, उनको फहराया जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है। एक न्यूज़ एंकर ने अपना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि कैसे उनको एक बार रिपोर्टिंग के दौरान शेख रशीद अहमद की असलियत जानने को मिली, बाकी नेताओं से कैसे ये हटके हैं। याद रखें कि शेख रशीद इन सारी चीज़ों को भुगतने के लिए नहीं बने हुए। ये बहुत नाजुक हैं, ये बहुत ही कमज़ोर आदमी है और ये बड़ी जल्दी घबराने वाले, डरने वाले आदमी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। जब ये रावलपिंडी जेल में थे तो मैं एक बार वहाँ पे जेल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपके पास बड़े पॉलिटिकल केसेस आए होंगे, बड़े ही पॉलिटिकल आपके पास मुलजम आए, तो सबसे कमज़ोर मुलजम कौन था? तो सब ने, बल्कि पूरे अमले ने, वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा शेख रशीद साहब से ज़्यादा कमज़ोर आदमी हमने जेल के मामले में किसी को नहीं देखा। दिन रात रोते रहते थे, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त वो रोते थे जैसे डॉक्टर की दवाई होती। कभी उनको पंखा जो होता तेज़ चाहिए होता था, कभी उनको एसी चाहिए होता था, कभी उनको ठंडा पानी चाहिए होता था, कभी उनको गर्म पानी चाहिए होता था। तो शेख रशीद साहब जेल से घबराते हैं। बहुत बेइज्जती हो गई। बहुत बेइज्जती हो गई। एक जोकर मंत्री के बाद अब आते हैं पाकिस्तान के एक जोकर एंकर। तालीम के लिए कुछ नहीं चाहिए, शोबा सेहत के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, साइंसी तरक्की के लिए हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए दे दे बाबा दे दे। ये तो तुम्हारे कहते हो ना उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा 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 गुटड़ू, वहां जाओ ना, जाओ। ये एंकरिंग भी करते हैं और मिमिक्री भी, काफी टॉन्ट कसते हैं ये वहाँ के लोगों को। मैं गुलाम ठीक हूँ जब पाकिस्तानियों को दुनिया भर के अंदर एयरपोर्टों पर रोक लिया जाता है, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, मेरे हरे पासपोर्ट को देखकर मुझे दूसरी कतार में खड़ा किया जाता है। अरे ये आजादी नहीं है, ये जो तुम्हारे कहते हो ना उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा 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 गुटड़ू, वहां जाओ ना, जाओ। दुबई में तुम्हें देंगे शहरियत, हमको सिर्फ चाहिए दे दे बाबा दे दे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और बात तो सही ही करते हैं,
लेकिन कोई सीरियसली ले तभी तो कोई बात बने। थोड़ी सी आज तबीयत बिगड़ी हुई है, शायद उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क की मईशत भी सुधर नहीं रही, ना हमारे मुल्क का माशरा सुधर रहा है, ना हमारे मुल्क की सियासत सुधर रही है, सब बिगाड़ की तरफ ही जा रहा है। इनके चेहरे का हाव भाव देख के इनकी हाइपर वाली एंकरिंग का मजा लीजिए। IMF ने कहा है बतलाओ भाई, तुम 2 नंबर चीटर लोग हो, तुम सबसे पहले अपने असासे जाहिर करो चीटरो। पर तो तुम्हें 2 टके की तुम्हारी इज्जत नहीं है, गुस्सा आ गया। देख है तुम्हारी इज्जत, दूसरे ममालिक में जाते हो तुम्हारी कोई इज्जत है? ऐसे देखते हैं पाकिस्तानियों को। इन न्यूज एंकर्स को देख के लगता है कि न्यूज एंकर्स खबरें सुनाने नहीं आते हैं, बल्कि सिर्फ टॉन्ट कसने आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपनी भड़ास निकाल कर चले जाते हैं। उधर जाते हो, गोरी से शादी भी करते हो, हैं? बच्चे फिर भी तुम लोगों के काले पैदा होते हैं, फिर भी उनसे नफरत करते हो, हैं? बोलते हो ये लोग ठीक नहीं है। तुम्हें वहाँ काम करने की आज़ादी, तुम्हें वहाँ नमाज पढ़ने की आज़ादी, तुम्हें वहाँ रोज़ा रखने की आज़ादी, तुम्हें हर किस्म की मजहबी आज़ादी। गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मुझे ऐसी गुलामी बेहतर लगती है ऐसी आज़ादी से जहाँ मेरा पेट भरा हो। वहाँ की फेमस एंकर फिजा खान को ही देख लीजिए, वहाँ की नंबर 1 एंकर। मुल्क की मशक्कत को तबाह बर्बाद 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 कर अच्छा। और बातें सुनिए इनकी कैसी रहती हैं। पलट तेरा ध्यान किधर, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। कैसा लॉजिक है इनका वो सुनिए। साबिक सदर, आर्मी चीफ और एक सच्चा निडर बहादुर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना तू क्या बोल रही है? तवील अदालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि उनका जो दौर है वो नाम नहाद जमहूरी हुक्मरानों के अदवार से कहीं बेहतर रहा। उनके दौर में जो डॉलर है 60 रुपए पर था, चीनी 27 रुपए फी किलो थी, मुल्की कर्जे जो आज कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 33 बिलियन डॉलर्स थे। परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौर है वो आवाम के लिए यकीनन एक सुनहरी दौर साबित हुआ था, मगर उनका जो सुनहरी दौर है वो खत्म भी नहीं हुआ था कि नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदारों ने उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। इनकी बातें सुन के आप खुद से यही पूछेंगे कि कोई सेंस है इस बात की? वहाँ की आम जनता के कुछ वीडियोस दिखाते हैं आपको। कुछ का मानना है कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। वाजिद अली, मुल्क ज्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? पाकिस्तान पावरफुल। हाँ, पाकिस्तान पावरफुल, बहुत पावरफुल भाई, बहुत पावरफुल। वजह है कि पाकिस्तान में सब चीज है, इंडिया में नहीं है ऐसी। ओ बाप रे। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खराब पांव जमीन पर टिके हैं और जो सही बात होती है वही बोलते हैं। वो वहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, तो क्या इंडिया को हमारे साथ करना चाहता है? इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है? हम बेकारी कौम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहत, ठीक है? नंगा करके नहला रहा। बाबा बेइज्जती हो रही है। एक बार पाकिस्तान के कुछ लोग ने बताया कि इंडिया की सबसे बुरी चीज उनको कौन सी लगती है। तो एक चीज जो इंडिया की आपको बुरी लगती है? दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अरे हक दिया। मोदी। बुरी चीज मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं क्रिकेट को देखने के बाद, जो है वो टीवी तोड़ने पे आते हैं, वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। उनको चाहिए स्पोर्टिंग लिए हार जीत होती रहती है, दे शुड टेक इट एज वेरी स्पोर्टिंगली के भाई होता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। आज पवन भाई। दीदी। अब वहाँ की एक ज्ञानी तेजस्वी मैडम से मिलिए और उनके शानदार विचार सुनिए। अगर मैं इंडिया जाऊँ बोलूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ और मैं इंडिया में आई हूँ, तो वो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो। अच्छा। द हेट दे हैव फॉर अस इज समथिंग के नहीं होना चाहिए, नहीं पसंद, क्योंकि हमारी तरफ से उनको कोई हेट नहीं है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। और एक काका तो वहाँ के मंत्रियों पर बरस पड़े, भड़क गए उनके ऊपर। झूठ बोलते ने बगाड़ते के ने सारे बगाड़ते के ने मैं विचे चीफ जस्टिस नु विचे फौज नु विचे इमरान खान और सारे नु कहना वो सारे चोर है जो वो सारे चोर। ओए भाई आस्ते। अब आपको दिखाते हैं कि ये लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें सीख के कहाँ से आते हैं। दरअसल ये अपने प्रधानमंत्री से ही ये सब बातें सीखते हैं। कभी ये लंबी लंबी फेंक देते हैं। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। तो फिर कभी खुद ही फुस हो जाते हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे।
इनकी बातें बिना सेंस की रहती हैं। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3, and the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty. We have learned our lesson, and we want to live in peace with India. बस हवा निकल गई। काफी बुरा हाल बना रखा है वहाँ के पीएम ने खुद का। সেটাই তো गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान के बाकी मंत्री भी कुछ कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। किसी भी एंगल से आपको सही नजर नहीं आएंगे, और बातें देखिए कितनी बड़ी बड़ी रहती है इनकी। हिंदुस्तान का मजाक उड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का मजाक उड़ा रही है। अच्छा, में अगर आप अमन चाहते हैं हम अमन के लिए खड़े हैं, अगर आप जंग चाहते हैं हम जंग के लिए खड़े हैं। कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। घू खा के मर जा, नाश्ते में अक्सर वहाँ के एंकर्स का काम होता है पाकिस्तान की बराबरी इंडिया से करना, और साथ साथ पाकिस्तान को भी छील देना। कि इंडिया की जंगी तैयारियां इस वक्त बिल्कुल एज पे इतनी पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उनको एक चिंगारी चाहिए इस वक्त आग लगाने के लिए, और भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। हाय हाय, इतना सुकून। वहाँ के लोग अंदर ही अंदर खुद को जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी इस बात को नहीं मानते हैं। चुल्लू भर पानी कह सकते हैं, या चुल्लू गिलास भर डूब मरने का मुकाम है। डूब मरे। छिलाई और मजे लेने की बात हो रही है तो बात करते हैं वहाँ की एक फेमस एंकर आरजू काज़मी की। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जिसे कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली हालत हुई हुई है। और शाहरुख खान फिल्म बना रहे हैं कि हम इतने डॉलर जो है वो, इतने बिलियन डॉलर जो है वो हम लगा रहे हैं भारत में कि ताकि 370 वापस आ जाए। अरे इतने बिलियन डॉलर हमारे पास होते तो आज तो हम यूं करके बैठे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने तो बैंड बजा के रखा है अपने ही मुल्क का। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपने देखा होगा हमारे देसी घरों में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग होते हैं कि हमारे घर में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन हम पड़ोसी में बड़ा रोब डालते हैं, बड़ा पैसा है जी, हमने तो 2 टीवी रखे हुए ना, हमारे पास तो इतने बड़े बड़े सोफे। तो इस तरह से लोग करते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया वालों को पता ही ना लगा कि हमारी क्या हालत है। मतलब हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास जैसे कहते हैं ना कि खाना पकाने के लिए चीजें नहीं है, हमारी जैसे कहते हैं ना बैंड बजी हुई है, ऐसी की तैसी हुई हुई है। मतलब हमारे जैसे कहते हैं ना कुछ बचा नहीं है हमारे पास। खूब मजे लेती हैं ये पाकिस्तान के, और वो भी इंडिया के सहारे। कि हम करें तो क्या करें कि हमारे पास ना कुछ खाने को है ना पीने को है। मतलब खाएंगे पिएंगे कुछ पैसा होगा तभी तो उठ के लड़ेंगे भी ना। खामाखाई की जो हमें रहती है ना कि वो कश्मीर वो तो वो भी नहीं है। ऊपर से जी आप लोग जो है वो इस किस्म की फिल्में बना रहे हैं जिसमें आप लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान इतना पैसा लगा रहे हैं भारत के अंदर 370। अरे 370 मतलब आप रखिए जी, हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम इस किस्म की फिल्में तो ना बनाइए ना। अगर किसी ने देख लिया अमेरिका में, IMF वाले ने देख लिया, हो सकता है ट्रांसलेशन करवा ले कि क्या बोल रहे हैं लोग हिंदी में उर्दू में, तो उसको तो लगेगा कि पता नहीं कितना पैसा हमारे पास, हमारे तो पहले ही वो पैसे नहीं दे रहे और हमारे पैसे रोक के बैठ जाएंगे। मतलब कुछ तो सोचा कीजिए। मुझे शाहरुख से उम्मीद नहीं थी। खैर बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये पिक्चर जो है ना उसमें ये स्टोरी मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। और इतने ज़्यादा रोने के बाद मोदी जी ने क्या कहा हमें ये भी सुनते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, रोना बंद कर दिया। लेकिन मोदी जी आप लोग खुद तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमी आपने अपनी बना ली है कि नंबर 5 पे पहुंच गए और बड़ी जल्दी ही जो है वो आप 4 पे और 3 पे भी चले जाएंगे। और हमारे लिए आप इस किस्म की फिल्में बना रहे हैं, इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। मतलब कुछ तो सोचिए ना, कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। और अगर इंडियन मीडिया से कोई ऐसा इंसान है जिसे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खुन्नस खाए बैठे हैं तो वो कोई और नहीं है, वो है मेजर गौरव आर्या। गौरव आर्या ये इस तरह बोलते हैं जैसे कि ये एंटायर, ये तो इंडियन आर्मी को भी नहीं जानते। और मैंने इनके बारे में जो कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो ये है कि ये प्योरली फेक आदमी है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। फेक आदमी डेली पाकिस्तान की खबर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के इशाक डर साहब, अगर वो ये कहते हैं कि ये लोन है, जो उन्होंने खुद ऐसा तस्लीम करा है, खुद माना है कि ये लोन है, तो डर साहब किस इंटरेस्ट पे लोन है? ये किस इंटरेस्ट पे लोन है? आपको कोई होता है ना इसमें कि ब्याज आपको देना पड़ता है, कितना ब्याज आपने प्रॉमिस करा है? अगर आपने ज्यादा ब्याज इसमें प्रॉमिस करा है, कम ब्याज प्रॉमिस करा है, तो क्या उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था? क्या आपने आवाम को बताया? खैर आवाम को तो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि दूध की नदियां बहेंगी, आवाम पागल हो गई बिल्कुल।
पूरी आवाम की आवाम बिल्कुल वहाँ पे भंगड़े डाल रही है सड़क पे कि दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, और डुगडुगी बजा के, और डर। अब वो बंद हो गया। अब मायूस हो गए सब कि सीपैक कहाँ चला गया, क्योंकि इनको सिर्फ ये बताया था कि देखो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पैसे पाकिस्तान में, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, चीन पाकिस्तान में पैसे डाल रहा है, और एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दूध की नदी, शहद की नदी, तुम्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। राइट, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, और डुगडुगी बजा के, और डर। अंत में आपको एक पाकिस्तानी भाई के साथ छोड़ जाते हैं जो आपका दिल खुश करेगा फॉर अ चेंज। तब तक के लिए ऐसे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो ऐसा सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं, किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। তো গাইস ভিডিওটা শেষ হয়ে গেল, তো অনেক ভালো ছিল। আর ফার্স্ট যে মানে কি বলবো লাস্ট যে রিপ্লে ছিল গৌরবাড়ি স্যারের সুপার ছিল, সুপার। গৌরবাড়ি নাকি ফেক, হাই ম্যান কি বলে, আমি তাকে একজন আইডল মনে করি আমার, ঠিক আছে। তার প্রত্যেক ভিডিও আমি দেখি, তার ভিডিওতে রিয়াকশনও দিয়েছি, তো খুব ভালো লাগে। অ্যান্ড ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পারসন, দ্যাটস আই লাভ হিম। খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলে, খুব ভালো লাগে আমার তাকে। আর তারা বলে ফেক, ম্যান কি বলে না বলে হয় না। তো গাইস ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর শুভম ভাইয়ের চ্যানেলে ঘুরে আসো, লিঙ্ক আছে। আর নতুন হলে আমার সেকেন্ড ব্লগেও একটু ঘুরে আসো, যাও ওখানে কমেন্ট দিয়ে বলো। আর ইফ ইউ সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল আই উইল মেনশন ইউর নেম ইন আ নেক্সট রিয়াকশন ভিডিও, মাস্ট, আই প্রমিস ইউ। তো ভালো থাকবা, নিজের খেয়াল রাখবা, ফ্যামিলির সাথে ভালো সময় স্পেন্ড করবা। নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নবদ্য। সো টেক কেয়ার, বাই বাই, সি ইউ, লাভ ইউ, টাটা।